परमेश्वर के वचन में स्पष्टता से लिखा है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। अर्थात वो सत्य क्या है? अर्थात प्रभु यीशु मसीह का परिपूर्णता को उन लोग ने प्रेम नहीं किया। इस कारण परमेश्वर भी उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा। Now listen very carefully. We are moving to something very specific right now. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए, एक मुख्य बातों पर हम प्रवेश कर रहे हैं। So be sensitive. इस कारण बड़े सतर्कता से साथ रहना। You know, it says here, because there is no love for the faith, not contending for the faith that is given to them, the Lord is going to send a strong delusion to them. उन्होंने विश्वास के प्रेम, उनके अंदर उस विश्वास के लिए प्रेम नहीं, अर्थात कौन से विश्वास, और पवित्र लोगों के लिए एक बार सौंपा गया, उस विश्वास में पूरा यत्न करने के लिए उनका प्रेम नहीं। इस कारण, उनका प्रेम नहीं रहने के कारण, उनमें सत्य के लिए प्रेम नहीं रहने के कारण, उस विश्वास के लिए प्रेम नहीं रहने के कारण, परमेश्वर भी एक भटका देने वाली सामर्थ को उनमें भेजेगा। Now let us see again. Let us the Lord make it very clear to us. Turn with me to 2 Timothy. और इस बात को और स्पष्टता से देखने के लिए, May God open our eyes, saints of God. तिमोथियुस की दूसरी पत्री को देखें। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमारे इस आत्मिका को, the Lord is instructing his disciples in this generation, in this dispensation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे प्रभु इस युग में, इस पीढ़ी में अपने और यीशु मसीह ने अपने मुंह से हमसे वार्तालाप कर रहा है कि हम आने वाले दिनों में अभी से हम तैयार हो जाएं। How many of you believe that God is preparing us in these days? और आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं God is preparing us, saints of God, इन दिनों में तैयार कर रहा है, that we may not run here and there, but we may know deep within us what is happening, what are the things that God is doing in the realm of his kingdom. इस कारण परमेश्वर के लोग हम इधर उधर यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं, उनके पीछे नहीं चलना है, परंतु इन बात को अपना जीवन के अंदर ही आत्मिक आंखों से, पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर कहां तक काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है, क्या हमसे कहता है, क्या दिखाई दे रहा है, कहकर हम अपने अंदरूनी मनुष्य में ही पवित्र आत्मा की सहायता से जो परमेश्वर का काम हो रहा है उसकी तरफ ध्यान लगाना। Now 2 Timothy chapter 4 तिमोथियुस की दूसरी पत्री अध्याय 4 and verse 3 and 4, तीसरा और चौथा पद। yes, 2 Timothy chapter 4, तिमोथियुस की दूसरी पत्री अध्याय 4, for the time will come. You know, please read in your own Bible so we can avoid it, reading in Hindi to save some time. Okay, because you have Hindi Bibles, you can read your Hindi. दूसरा तिमोथी अध्याय 4 and verse 3 and 4. और का तीसरा और चौथा पद। For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Now, here is a precious counsel of God. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने बड़े यत्न से हमसे प्रेम करके एक बहुमूल्य सलाह हमें दे रहा है, सतर्क कर रहा है। Yes, let me read it from the Amplified New Testament as well. Verse 3. Amplified में देखेंगे। For the time is coming when people will not tolerate, endure sound and wholesome instruction, but having ears itching for something pleasing and gratifying, they will gather to themselves one teacher after another, to a considerable number, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold, and will turn aside from hearing the truth and wander off into myths and man-made fictions. As for you, be calm and cool
and steady, accept and suffer unflinchingly every hardship. Do the work of an evangelist, fully perform all the duties of your ministry. Oh, what a precious word it is, isn't it? कितना बहुमूल्य वचन है Hallelujah. परमेश्वर और से। What a precious word this is. ये कितना बहुमूल्य वचन। Oh, it's very, very enlightening. वो हमें बहुत प्रकाश देता है। For the अत्यधिक time प्रकाश is देता है। coming, क्योंकि वो समय आता है, and saints, we have आएगा। come to those times. We have come to those times, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो समय में आ पहुंचा है। and we are in those times. हम उन समय में हम रहते हैं। वो समय आएगा बोला है। वो समय हम उस समय में हम आ चुके हैं। This end time will be characterized by these things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये अंतिम दिन का Yes. निशान जो है यही बातें हैं। One of the characters, that we would see, one of the characteristics that we would see in these days is men will heap up preachers and teachers who will give them what they desire. और मैं बताना चाहता हूं, Yes. इन अंतिम दिनों की चिन्हों में एक चिन्ह जो है, Yes. परमेश्वर की विश्वास करने वाले बोलने वाले लोग क्या कर रहे हैं, अपने इच्छा के अनुसार बहुत सारे उपदेशों को और प्रचारकों को जो अपने प्रचार और शिक्षा के द्वारा Yes. उनको उनकी शारीरिकता को या उनके विचार को, उनके गलत विचार को सहमत होकर उनको तृप्त करेगा, Now- बहुत भटोरेंगे। Now listen carefully here. It's very important. अत्यधिक ध्यान से They will सुनिए। gather to themselves one teacher after another to a considerable number, chosen, now this is important, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold. इधर क्या लिखा है? Chosen to, that's enough. Chosen to satisfy their own liking. और वो उनकी चाहत को संतृप्त करने वालों को चुन लेगा। Yes. And to foster the errors they hold. और जो गलतियां उन्हें थामे रखा है, जो गलतियां उनके जीवन में जो थामे रखा है, उनको बढ़ावा देने वाले Yes. को उन लोग चुन लेंगे। They will turn aside from hearing the truth. They will turn aside from the faith. और वे लोग सत्य से कान फेर लेंगे। दूसरा अर्थ यह है, Yes. उस विश्वास जो पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया, जिसके लिए ये पूरा यत्न करना, उस विश्वास से Yes. उन लोग फेर लेंगे, फिर जाएंगे। They have their own liking. क्योंकि वे अपने कामना रखते हैं They like their desires. और अर्थात जो उनका स्वयं की कामनाएं। Yes. Saints of God, there is a big trap here, and listen carefully. परमेश्वर The के प्रिय trap लोगों, of the enemy. The मैं- trap of the devil. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो शैतान मेरे और आपका आत्मिक शत्रु की जाल इधर ही है। सतर्क रहना, ध्यान से सुनना। Now these people are God's people. These people are God's people. ये लोग तो परमेश्वर के लोग हैं They want to hear God. और वे लोग परमेश्वर को सुनना चाहते हैं। You know that? आप जानते हैं, They are God's people, वे परमेश्वर के लोग हैं but they want to hear God. और उन लोग परमेश्वर को भी सुनना But चाहते they हैं। want to hear God according to their liking. परंतु How do you like that? वे परमेश्वर के लोग हैं। Yes. ध्यान से सुनना। पहले बात परमेश्वर के लोग हैं, Yes. वे परमेश्वर के ही सुनना चाहता है। Yes. परंतु जैसा उन लोग मनोकामनाएं हैं, Yes. उसके अनुसार सुनना चाहता है। You know, there are today many saints of God. They want to hear God, but they want to hear God according to their liking. और आज भी बहुत Yes. परमेश्वर का विश्वासी लोग हैं, Yes. जो वे लोग परमेश्वर को ही सुनना चाहता है, Yes. परंतु अपने मनोकामना के अनुसार सुनना चाहता है। Yes. And therefore they say, brother, the message was very good, but I just took only a few points which I thought is the word of God to me. और उन लोग क्या कहते हैं, You know? भाई संदेश तो बहुत अच्छा है, लंबा 2.5 hours. हाँ, और सही अनुवाद भी है, सब कुछ अच्छा है, परंतु जो परमेश्वर का वचन कहकर मैं समझता हूँ, मेरे Yeah. मनोकामना के अनुसार समझता हूँ, Yes. वही बातों को मैंने ले लिया ब्रदर। आपकी बातों को तो मैंने I नहीं hear God according to my liking. लिया। मैं जैसा मेरे मनोकामना है, उसके अनुसार ही मैं परमेश्वर को सुना। Or I will try to follow God according to my own desire. मैं
जैसा मेरे मनोकामना Yes. है उसके अनुसार ही मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। Oh, you are entering a trap of the devil, saints of God. परमेश्वर- Do not have any mercy towards this attitude in your life. परमेश्वर के प्रिय Please. लोगों, Hallelujah. ये There's a उस warning here. उस दूत शत्रु, उस चतुर शत्रु का एक बड़ा जाल है, और इसके ऊपर आप Yes. बिल्कुल दया नहीं करना अपने जीवन में है तो इसके ऊपर बिल्कुल दया नहीं करना, उसको क्रूस पर चढ़ाने के। I want to hear the Lord's voice, मैं प्रभु का मुख्य शब्द सुनना चाहता हूं, but I will choose to hear him according to my liking. जो मेरा मन जो कामना करता Yes. है उसी बातों को मैं प्रभु से सुनूंगा। Now that's what we read here in these verses. और ये वचनों में यही हम बात देखते हैं, They cannot tolerate, क्योंकि उन लोग खरे उपदेश सहन नहीं they सकेंगे, cannot tolerate any longer. क्योंकि उन लोग अधिक समय और सहन नहीं And सकेंगे। I want to tell you, मैं आपकी बात बताना the चाहता हूँ, Lord is not talking about other people, the Lord is talking about us. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, दूसरे लोगों के विषय पर परमेश्वर आज प्रातः काल इधर बात नहीं कर रहा है, He's talking परंतु about us. हमारे विषय पर ही परमेश्वर ने हमारी सामने हमारी तस्वीर रखकर बता रहा है। No, we need to examine ourselves, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सब के सब अपने अपने जीवन को These परख are- कर जांच कर These जानना, are deceptive days. क्योंकि ये धोखे का भरमाने वाले समय हैं, We got to go for the camp meeting, क्योंकि हम क्या मीटिंग में जाना, and if I don't go, और यदि क्या मीटिंग में नहीं गया what तो, will people think about me? और लोग क्या सोचेंगे, And so I have to be there in the camp meeting. इस कारण मैं क्या Now I मीटिंग, can say more boldly because we are in the last day of the camp. ये इस शिविर सभा का अंतिम दिन है, इसलिए मैं बड़े हियाव के साथ में इसको बोल सकता हूँ। And you know what you have received from the Lord. आप जानते हैं इस शिविर सभा Here में, is the test. इस शिविर में आप प्रभु से आप क्या स्वीकार किया, आप स्वयं जानते हैं, You know what you have received. और आप जानते हैं आपने क्या स्वीकार किया, ग्रहण किया। I do not know, saints of God, you are the best judge on concerning yourself. आपके जीवन के विषय पर मैं एक न्यायाधीश नहीं हूं। You can examine your own life this आप morning. इस प्रातः काल के अवसर पर पवित्र आत्मा की सहायता से इस सच्चाई के प्रकाश में अपने हृदय को, अपने अंदरूनी भीतरी मनुष्यत्व को अच्छी तरह जांचें, परखें और जान लें। Now they would like to hear God according to their liking, according to their desire. They want to follow the Lord, but they want to follow the Lord according to their desire. और ये लोग जो है Yes. अपने स्वयं की मनोकामना के अनुसार ही परमेश्वर को सुनना चाहता है, Yes. हमारे स्वयं की मनोकाम के अनुसार ही प्रभु के पीछे या प्रभु के अनुयायी होना चाहते हैं। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, I cannot be held responsible for that. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात के लिए मुझको आप उत्तरदायी तो मत ठहराइए। You are responsible for your own life. आपके जीवन के लिए आप स्वयं उत्तराधिकारी है। If you are entering into the trap of the evil one, you are responsible for it. आपका भीतरी मनुष्यत्व में, आपका आत्मिक मनुष्य में उस शत्रु की जाल फैलाने के लिए आप जगह दिया तो उसके लिए आप भी आपका ही उत्तरदायित्व है, आप ही उसके उत्तराधिकारी है। We may not go to some other church, we may not leave this fellowship, but while we are yet here, we may have a liking of others, we may have a choice of others, and we will choose to hear him according to our convenience and liking, and that is the trap of the devil, and that we will be drawn away from God's real purposes. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात के लिए इस सहभागिता को छोड़कर, इस फेलोशिप को, इस मंडली को छोड़कर दूसरे मंडली के जाने की आवश्यकता नहीं। No. इधर ही आपका अंदर अपने Yes. स्वयं की मनोकामना बड़ी दृढ़ता से रखते हुए उस Yes. शैतान का उस जाल को फैलाने के लिए जगह देते हुए आप सुनते रहेगा, और प्रभु का शब्द आपके मनोकामना के अनुसार Yes. आप सुनते रहेगा। बाकी परमेश्वर जो बड़े गंभीर बात बता रहा है, सावधानी बात बता रहा है, और ये बैठते हुए उससे आप कान फेरने का खतरा भी है। Yes. Now why do people choose like that? और क्यों लोग इस मार्ग को चुन रहे हैं? They would like to know or hear the Lord, और उन लोग परमेश्वर को तो सुनना चाहता है,
but they really do not want to take the whole counsel of God. परंतु परमेश्वर की पूरा संपूर्ण मनसा को अपनाना नहीं चाहता है. The reason is, और उसका कारण यह है, there is a conflict inside. उसके अंदर जो है, There is a conflict inside of us. उसके उनके मन हृदय के अंदर कुछ संग्राम हो रहा है. Yes. कुछ युद्ध हो रहा है अंदर अंदर ही. If you will receive the whole counsel, then you have to say no to your own self-life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, You have to say no to your desires, your likings. यदि परमेश्वर की संपूर्ण मनसा को Hallelujah. आप स्वीकार किया तो Yes. आपकी स्वयं को, आपकी स्वयं की मनोकामना को Yes. त्याग देना पड़ेगा, छोड़ना Yes. पड़ेगा. So there is a conflict इस कारण in our hearts, in our minds. हमारे मन में, हमारे हृदय में युद्ध हो रहा है. And so we choose, we desire to hear him according to our liking. परमेश्वर हमसे बात करता है, परंतु हमारे मनोकामना के अनुसार हम सुनना चाहते हैं. Today many people say, आज बहुत लोग कहते हैं, we get to hear from many places, people saying, I like that man of God. I like that servant of God. बहुत लोग कहते हैं, मैं उस परमेश्वर दास को मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं उसको प्रेम करता हूं. Because those men would minister according to their liking क्योंकि and their desire. क्योंकि वे उनकी मनोकामना के अनुसार उनको वचन देते हैं. इस कारण And saints of God, when we begin to feed on according to our liking and our desire, listen carefully. ध्यान से सुनिए, हमारे मनोकामना के अनुसार, Yes. हमारे हृदय की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन को हम सुनते रहे तो We are opening ourselves to fables and stories and many other things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम कथा कहानियों के लिए हमारा अंदर मनुष्य को खोल कर रख देते. Then we are opening the door for delusion to come into our life. That is how strong delusion comes in. परमेश्वर के प्रिय लोगों, तब हमारे जीवन में और उस भटका हुआ सामर्थ आने के लिए द्वार खोल कर रखते हैं. We are no longer contending for the faith. हम उस विश्वास के लिए पूरा यत्न नहीं करते. We have no love for the truth. हम उस सच्चाई के लिए प्रेम नहीं करते. And so what the Lord will do is, और प्रभु क्या करेगा? once we have our mindset, our desire set to go the way we want to go, God will let you go and he will help you to go. और ध्यान से सुनना, Yes. बार बार परमेश्वर ने बड़े यत्न करके, Yes. प्रेम से हमसे करुणा करके Yes. अपना संपूर्ण मनसा हमारे सामने रखता है कि मैं और आप इन सारी बातों से Yes. अपने आप को बचा लें. Yes. परंतु जब परमेश्वर ने बड़े यत्न करके Yes. संपूर्ण मनसा हमारे भीतर आकर देता है, उस अवसर पर यदि मैं और आप अपने मनोकामना के अनुसार Yes. सुनना चाहता है तो परमेश्वर क्या करेगा? ठीक है, आप अपने मार्ग में जाओ. आपकी मार्ग में जाने के लिए प्रभु स्वयं सहायता भी करेगा. Yes. अर्थात यही That's what भटकाने वाली सामर्थ परमेश्वर के द्वारा भेजा जा रहा है. Yes, the Lord says, the Lord will send a strong delusion. The Lord will send, it says. बाइबल में कॉल कर देखिए, दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय 11वां पद में Yes. परमेश्वर उनमें एक भड़के देने वाली सामर्थ को भेजेगा. Yes. परमेश्वर ने भेजेगा. What does that mean? उसका अर्थ क्या है? He will allow the enemy. The restraint will be removed and he will go ahead. और आपके जीवन के अंदर
जो शत्रु की रोक, शत्रु पर जो रोक है, Yes. परमेश्वर अपने रोक को हटा देगा। शत्रु पहले जाल बिछा देगा, फिर अपना बात ले आएगा, स्वयं आपके जीवन में आकर अपना शासन शुरू कर देगा। Yes. All that God has to do is withdraw the light and darkness comes in. The result is darkness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु क्या इस बात के लिए भटकाने वाले जो सामर्थ को भेजने का क्या काम करना, जो कुछ आपने प्रकाश पाया प्रभु की ओर से, Yes. प्रभु ने उसको आपसे वापस ले लेना और ऐसा ही करेगा। जब प्रकाश वापस लिया जाएगा तो उधर क्या शेष रहेगा? अंधकार रह जाएगा। That's what we see in the natural. I was talking about natural, he made it spiritual. Darkness is, when the light is withdrawn, the result is darkness. जब प्रकाश हटा दिया जाएगा, Yes. वो अंधकार है। You don't have to create darkness. आप अंधकार को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई जनरेटर की आवश्यकता नहीं। When God withdraws, the result is darkness. जब परमेश्वर प्रकाश को हटा देगा, Yes. तब वो अंधकार है। It is not that God will make some kind of delusion and send it to them. But when God will withdraw his hand, the result is they will get into greater delusions. इसका अर्थ यह नहीं, Simple as that. परमेश्वर ने एक भटका हुआ सामर्थ को बड़े अपनी बुद्धि से सृष्टि करना, यह बात नहीं। केवल परमेश्वर ने अपने सत्य को, प्रकाश को हटा देगा, तब वो परमेश्वर के हटाने के कारण अंधकार को पूरा जगह मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय the word of God is very clear, and let's really take note of that in our lives. और परमेश्वर का वचन बड़ी सुस्पष्ट है, क्योंकि स्पष्टता से बार बार बताया गया। इसको सावधानी से बड़े चार्ट के साथ सुने। Let there be, even though there will be conflicts in our lives, what God is speaking to us may be difficult for us, but saints of God, we have no choice but to receive his counsel and give ourselves wholeheartedly unto the Lord in these days. परमेश्वर हमसे वार्तालाप Hallelujah. करता है, हमारे जीवन की अंदरूनी भागों में और संग्राम होते रहता है, और परमेश्वर के संपूर्ण मनसा को स्वीकार करने में हमारे As a thief in the night, as a thief in the night, the day of the Lord shall come, as a thief in the night. Let us watch therefore, gird our hearts with his truth, for as a thief in the night, the day of the Lord shall come. We are not children of the darkness, we are not children of the night, we are children of the day, we are children of the light. We must be ready, we must not slumber, we must be sober and watch, for as a thief in the night, the day of the Lord shall come. As a thief in the night, as a thief in the night, the day of the Lord shall come. As a thief in the night, let us watch therefore, gird our hearts with his truth, for as a thief in the night, the day of the Lord shall come. We are not children of the darkness, we are not children of the night, but we are children of the day. We are children of the light. We must be ready, we must not slumber, we must be sober and watch, for as a thief in
day